Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read about the lesson. Okay, and we will understand everything which will come in the lesson. Okay? So let's start it. The ant and the grasshopper is a famous fable which conveys the moral that industry is rewarded and giddiness punished. The story, as narrated by W.S. Mogham, gives a different picture. George Ramsay spent his life with prudence and common sense. He worked hard, earned much, lived modestly, and saved money for old age. His brother, Tom Ramsay, worked little, earned nothing, lived lavishly on debts and debts. And his brother's generosity and planned nothing for old age. But as luck could have it, he got married to an old but rich lady who died after some time. He got her property and a handsome amount in cash. Thus, the lesson proves that it is not necessary that hard work is rewarded or honesty always pays. It shows that prudence causes sufferings. A person like Tom Ramsay was in better position to enjoy old age than hard-working and prudent George Ramsay. So this was the reading of about the lesson. Dear students, you should also read and practice your reading because reading is very important. If you cannot read properly, how can you speak properly? So reading is the best thing to accustom yourself for speaking. So let us translate now without getting late and paying a lot of time to the explanation of what to do and not to do. So let's start it. The ant and the grasshopper. चींटी और टिड्डी is a famous fable, एक मशहूर कहानी है which conveys the moral, जो हमें जो देती है moral अखलाकी मैसेज को, that industry की मेहनत is rewarded, कि मेहनत जो है लगन जो है वो उसका बदला दिया जाता है and giddiness punished, और काहिली सुस्ती को सज़ा मिलती है. तो फेबल मीन्स होता है a story that conveys a lesson to the human beings. यानी फेबल ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर कोई लेसन हो, कोई सबक हो जो आवाम नास तक पहुंचाने की कोशिश की जाती हो, तो हम उस कहानी को क्या कहते हैं? फेबल कहते हैं. कॉन्वे मीन्स होता है टू सेंड, भेजना, मैसेज देना. ठीक है, टू सेंड मैसेज, टू टीच अ लेसन एक्सेट्रा. तो कॉन्वे मीन्स लेसन देना, सबक देना या मैसेज देना. मोरल मीन्स अखलाकी, characteristic. Okay, industry means mehnat, lagan, or work and the process. Okay, is rewarded. To be rewarded means to be awarded, inam diya jana. To be awarded, to be rewarded, to be awarded, yani inam diya jana. And giddiness is punished.
Giddiness means susti, kahili. Okay, and to be punished ये पैसिव वॉइस में है, सजा दिया जाना. The ant and the grasshopper is a famous fable. चूंटी और टिड्डी एक मशहूर कहानी है which conveys, जो मैसेज देती है, the moral, अखलाक की, that industry की मेहनत, लगन is rewarded, को इनाम दिया जाता है, यानी मेहनत को इनाम दिया जाता है, and giddiness punished, और giddiness और सुस्ती काहिली को सज़ा दी जाती है. The story as narrated by Mogham, कहानी जैसा कि बयान किया गया है W.S. मोघन के ज़रिए से, gives a different picture, एक मुख्तलिफ सूरत को पेश करती है. ओके, यानी जो ये द अंट एंड द ग्रासहोपर, ये एक अलग ही सूरत को पेश करती है. गिव्स अ डिफरेंट पिक्चर, यानी प्रेजेंट अ डिफरेंट पिक्चर, एक अलग सूरत को पेश करना. ओके, टू नरेट माने होता है रिवायत करना या बयान करना. एज नरेटेड, जैसा कि बयान किया गया W.S. मोघम के ज़रिए से, एक मुख्तलिफ सूरत पेश करती है. जॉर्ज रामसे spent his life with prudence. जॉर्ज रामसे जो है अपनी ज़िंदगी होशमंदी के साथ जीता है. एंड कॉमन सेंस, और आम समझ के साथ जीता है. ओके, तो to spend someone's life means to live someone's life. खर्च करना अपने ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी जीना. George Ramsay spent his life with prudence, and prudence means होशमंदी, carefulness. Okay, carefulness, होशमंदी, and common sense, and यानी with common understanding, with common sense, and means common sense के ज़रिए से, आम अक़ल के ज़रिए से. George Ramsay spent his life with prudence and common sense. जॉर्ज रामसे अपनी ज़िंदगी को जीता है, खर्च करता है होशमंदी के साथ, and common sense, और आम अक़ल के साथ, आम समझ के साथ. Sense means understanding, common means general, यानी general understanding. He worked hard, वो सख्त मेहनत करता है. Work hard means मेहनत करना. ओके, या earned much, और ज़्यादा पैसे कमाता है. To earn money means पैसा कमाना. Lived modestly, और अच्छे से ज़िंदगी जीता है. Modestly माने शाइस्तगाना ज़िंदगी, शाइस्तगी से ज़िंदगी को जीता है. And saved money for old age, और पैसे को महफूज करता है, जमा करता है. For old age, बुढ़ापे के लिए. For old age means जब उम्र दराज हो जाए उस वक़्त के लिए वो पैसा भी जमा करता है. His brother, तो यहाँ पर every word is very easy, no need for the explanation. Modestly means शाइस्तगी से, सलीक़े से, and save money माने होता पैसा महफूज करना, जमा करना. For old age, बुढ़ापे के लिए. ओके, he worked hard, वो सख्त मेहनत करता है. earned much, ज़्यादा पैसा कमाता है. lived modestly, और शाइस्तगी से ज़िंदगी को जीता है. and saved money for old age, और पैसों को जमा करता है बुढ़ापे के लिए. His brother Tom Ramsay, उसका भाई टॉम रामसे वर्कड लिटिल, थोड़ा काम करता है, यानी कम ही काम करता है. एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं कमाता है. लिव्ड लैविशली, और
शाहाना ज़िंदगी को जीता है। lavishly यानी with spending a lot of money on himself, ओके। और वो धुआंधार जीता है on debts, कर्ज के पैसों पर, and his brother's generosity और अपने भाई के सखावत पर, and planned nothing और कुछ भी प्लान नहीं करता है वो, ओके। तो lavishly मीन्स मतलब धुआंधार, बगैर यानी केयर के, carelessly, without paying attention to what is going to happen in his life. He lives his life lavishly on debts. Debts means होता है कर्ज। Debts नहीं, इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? debts be silent है। And his brother's generosity means होता है सखावत। and plan nothing, to plan means होता है मंसूबा करना। तो his brother टॉम रामजे, उसका भाई टॉम रामजे, worked little, कम काम करता है, and nothing, कुछ नहीं कमाता है, lived lavishly, धुआंधार जिंदगी को गुजारता है, and debts, कर्जों पर, and his brother's generosity और अपने भाई की सखावत पर, and planned nothing और कुछ भी प्लान नहीं करता है, ओके या। फॉर ओल्ड एज, बुढ़ापे के लिए वो कुछ भी प्लान नहीं करता है। वहीं पर उसका भाई जो है वो बुढ़ापे के लिए पैसे को जमा करता है। बट एज लक कुड हैव इट, लेकिन किस्मत से, लकली, ओके, क्या वाक़ई होता है ये देखते हैं। बट एज लक कुड हैव इट, लेकिन किस्मत से, ही गॉट मैरिड टू एन ओल्ड, वो शादी कर लेता है, टू एन ओल्ड, एक बूढ़ी, बट रिच, लेकिन मालदार लेडी से, ओके। टू गेट मैरिड टू समवन मीन्स टू मैरी, शादी करना, ओके या। हु डाइड, जो मर जाती है, आफ्टर सम टाइम, चंद समय के बाद या चंद दिनों के बाद, उस लेडी का जो मालदार थी और टॉम रामसे ने उससे शादी की हुआ था वो मर जाती है। ही गॉट हर प्रॉपर्टी, वो हासिल कर लेता है उसके जायदाद को, एंड हैंडसम अमाउंट इन कैश, और ढेर सारों रकम को, इन कैश, कैश में, और यानी वो उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर लेता है और साथ ही साथ उसको काफ़ी सारे रुपए कैश में मिल जाते हैं, ओके। तो गेट समवन्स प्रॉपर्टी मीन्स जायदाद को हासिल करना, हैंडसम अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा रकम, इन कैश मीन्स यानी कैश जो उसके पास हो, वहीं पे बैंक में ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इन कैश। आई हैव 500 रुपीज़ इन कैश, यानी मेरे पास कैश 500 रुपये हैं। तो आप यानी कैश जो बैंक में न जमा हो, आपके पास हो। दस द लेसन प्रूव्स, इस तरीके से सबक साबित करती है। टू प्रूव मीन्स होता है साबित करना। दस मीन्स इस तरह से, दस द लेसन प्रूव्स, इस तरह से लेसन साबित करती है, दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि कोई ज़रूरी नहीं है, दैट हार्ड वर्क इज़ रिवार्डेड, कि मेहनत को, सख्त काम को, लगन को बदला दिया जाता हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी आदमी ने मेहनत किया हो तो उसे बदला मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आर ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, या ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ईमानदारी हमेशा यानी अच्छी चीज़ होती है और वो अदा कर दी जाती है। यानी ईमानदार होना और हार्ड वर्किंग होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बदला दे जाए, ओके या। इट शोज़,
तो यहाँ पर नेसेसरी मीन्स ज़रूरी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, हॉनेस्टी नहीं, क्या पढ़ोगे, ऑनेस्टी, ये चीज़ साइलेंट। पे मीन्स अदा करना। इट शोज़, ये दिखलाता है, दैट प्रूडेंस कॉजेज सफरिंग, कि होशमंदी जो है ये तकलीफ़ों की सबब बनती है। काज माने होता है सबब बनना, सफरिंग्स माने होता है तकलीफ़ या तकलीफ़। इट शोज़, ये दिखाती है, दैट प्रूडेंस कॉजेज सफरिंग्स, कि होशमंदी ये तकलीफ़ों को जन्म देती है या तकलीफ़ों का सबब बनती है। अ पर्सन लाइक टॉम रामसे, एक आदमी जो टॉम रामसे जैसा हो, वॉज इन बेटर पोजीशन, एक अच्छी हालत में रहता है, टू इंजॉय ओल्ड एज, बुढ़ापे की उम्र को इंजॉय करने के लिए, मज़े से जीने के लिए, देन हार्ड वर्किंग एंड प्रूडेंट, सख्त मेहनती और होशमंद जॉर्ज रामसे से, यानी जो जॉर्ज रामसे था वो काफ़ी अच्छा आदमी था, वो मेहनत करता था और अपने बुढ़ापे के लिए यानी पैसों को जमा करता था कि ताकि वो अपने ओल्ड एज को अच्छे से जी सके। लेकिन वहीं पर जो उसका भाई था टॉम रामसे, उसने न कुछ काम किया न कुछ प्लानिंग की, और उसने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली और वो जो बूढ़ी औरत थी उसका इंतकाल हो गया। फिर टॉम रामसे को उसकी पूरी जायदाद और उसके हैंडसम अमाउंट इन कैश उसके हाथ में आ गए और उसने अपने ज़िंदगी को अच्छे से जिया। तो इस लेसन से यही बात साबित होती है कि होशमंदी, अक्लमंदी, मेहनत कभी कभी अपना बदला नहीं देती है। वहीं पर एक सुस्त आदमी, काहिल आदमी को कभी कभी उसकी किस्मत जो है उसको दे जाती है और वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीता है। So that was the lesson today. I hope that you understand everything, words and meanings and translation. इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।